8 members of parliament have been suspended from the Lok Sabha today for what has been termed, quote-unquote, unruly behavior by the chair. And the action followed a resolution moved by Kiren Rijiju after repeated disruptions in the House. The uproar began when Rahul Gandhi sought to quote a media article referring to former Army Chief M.M. Naravane's unpublished book, and during the disruption, opposition MPs allegedly threw papers inside the House, prompting the government to move a motion against them. The resolution was passed by a voice vote. Following this, the Speaker in the chair, Dilip Saikia, formally announced the suspension of 8 Congress MPs from the Lok Sabha. Those suspended include Manikam Tagore of the Congress Party and 7 others, including C. Kiran Kumar Reddy, Prashant Padole, Hibi Eden, Dean Kuryakos, S. Venkatesan, Gurjeet Singh Aujla, and Amarinder Singh Raja Waring. Soon after the suspensions, Congress MPs, led by Rahul Gandhi, staged protests outside the Parliament building, condemning the action and alleging suppression of the opposition's voice. Chaos and pandemonium inside the Lok Sabha spilling over into protests outside the Parliament, and the political standoff is expected to further intensify proceedings in the ongoing session of the Parliament, even as 8 members of Parliament have been suspended for throwing paper and unruly behavior inside the Lok Sabha. A resolution moved by Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju after repeated disruptions in the House. The resolution passed by a voice vote. The uproar being triggered by Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, wanting to raise the topic of a media article that referred to former Army Chief M.M. Naravane's unpublished book. Rahul Gandhi, meanwhile, doubling down the attack on the Prime Minister. Now we have Kumar Vikrant joining us on the phone line for more. Kumar Vikrant, 8 MPs को सस्पेंड किया गया है और ये जो चर्चा आज हो रहा है ये 2 दिन से हो रहा है और ये चर्चा और बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इंडो यूएस ट्रेड डील की बात हो, आज राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल के मामले को भी उठाया और इन दोनों मामलों को लेकर के जिस तरीके से सदन में हंगामा किया, और उसके बाद जब राहुल गांधी जो कल बोल रहे थे कि नरवणे की किताब के मामले को लेकर के, उस पर उन्होंने आज कहा कि मैं लिखित रूप से ऑथेंटिकेट करता हूं, अब मुझे बोलने दिया जाए। उस पर भी स्पीकर ने कहा कि कल रूलिंग आ चुकी है, आप इस पर नहीं बोल सकते। इसी के बीच हंगामा जब बढ़ा तो कांग्रेस के सांसद और सीपीएम के सांसद वेंकटेश्वरन, 7 सांसद कांग्रेस के और एक 8वें सांसद सीपीएम के वेंकटेश्वरन, ये कुछ लोग इसमें से टेबल पर चढ़ गए, कुछ लोगों ने पर्चे फाड़े, जिसके बाद सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामा जोरदार हुआ। उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि जो 8 सांसद हैं इनको निलंबित किया जाए, जिसके बाद चेयर ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पास करते हुए इन 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। और अभी इन सांसदों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो सदन कल सुबह फिर आएंगे और 10:30 बजे मकर द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और चूंकि उनके नेता कहना है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसलिए हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे और कल सदन के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम बाहर प्रदर्शन करेंगे। जी, Kumar Vikrant there getting us in. Kumar Vikrant ji, bane rahiye हमारे साथ. Meanwhile, in the latest that's coming in, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has launched a sharp attack on Prime Minister Narendra Modi over the recently announced India-US trade deal. Addressing the media, Rahul Gandhi alleged that the Prime Minister was under quote-unquote extreme pressure, claiming that the trade agreement, which he said had been stalled for months, was pushed through suddenly. He said the deal could damage the Prime Minister's image and alleged that the Prime Minister was quote-unquote compromised. Rahul Gandhi and Congress party members staging protests outside the Parliament. Rahul Gandhi further claiming that the government did not allow the Leader of the Opposition to speak during the President's address, and also alleged
that the Prime Minister had, quote unquote, sold the hard work of the people through this trade deal with the US. Rahul Gandhi also linking the issue to ongoing developments in the US, referring to a case involving the Adani Group, alleging that it amounted to pressure on the Prime Minister. He further made references to the Jeffrey Epstein, disgraced financier, and the files related to him that have been released recently by the Justice Department of the US. And Rahul Gandhi claiming that more information was yet to be made public, and this too was a pressure point. Rahul Gandhi said the country needed to understand these developments and questioned the timing and circumstances under which the trade deal was finalized. आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं विपक्ष के जिनके चेहरे खिलखिलाए थे, खुशी मना रहे थे कि जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था तो खुश थे वो लोग। लेकिन आज
जब सही मायने में खुश होना चाहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इतिहास रचने वाले हैं। इससे पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, उन पर भी खुशी मनाने की बजाय विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्या भारत के हित में है कि भारत के विरोध में है? भारतीय सेना के खिलाफ है, भारत की ट्रेड डील्स के खिलाफ है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ है, भारत की संसद के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। ये भारत विरोधी सोच राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेताओं की और विपक्ष के नेताओं की स्पष्ट दिखाती है कि आज ये संसद भी चलने नहीं दे रहे। First, it was chaos and ruckus inside the parliament, and then protests and charges by the leader of the opposition of the Lok Sabha outside the parliament. 8 MPs suspended over unruly behavior after a resolution was moved by Kiren Rijiju due to repeated disruptions in the House. After Rahul Gandhi sought to take up the issue of the media article referring to former Army Chief M.M. Narayane's unpublished book. Opposition MPs throwing paper inside the House, prompting the government to move a motion against them. Resolution being passed by a voice vote. Let's listen to some of the reactions coming in. लोकसभा से एक और सस्पेंडेड सांसद कांग्रेस के किरण रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग टेबल में चढ़ गए, आप लोगों ने इतना हंगामा किया तो संसद ने आपको स्पीकर ने निलंबित कर दिया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर उन लोगों के पास सत्ता है तो सत्ता को गलत इस्तेमाल करने के लिए अगर अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देते, जो लोग हमको चुना के इधर भेजा है, अगर उन लोगों के जो मुद्दे पे हम यहाँ नहीं डिस्कस करने देते तो आज प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर जो डिबेट में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को बात करने नहीं दे रहे और हर मुद्दे पे वो पैनल ऑफ स्पीकर्स को मोटिवेट करके भेज रहे कि हाउस को डिस्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे, पैनल ऑफ स्पीकर्स को प्रोसीडिंग्स में ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हुक्म दे रहे और ऊपर से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की माइक काटने के बाद हम क्या स्पेक्टेटर बन के उधर बैठेंगे? हम तो पूछने गए उसके पास, तो अगर वो सस्पेंड करे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हम तो इधर अगर हाउस में हमारे को बात करने नहीं देते तो अब बाहर आके बात करेंगे। कहाँ से कहाँ तक सस्पेंड करेगा? सिर्फ हाउस में सस्पेंड किया ना, ये मुद्दा यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। हम जरूर सवाल पूछेंगे क्या हो रहे, हर मुद्दे जो अभी राहुल जी ने बात कर रहे उसको कम से कम अगर वो बुक के बारे में नहीं बात करना है तो सब्जेक्ट के बारे में बात करना है, ट्रंप के बारे में बात करना है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना है। किसी मुद्दे पे जो मुद्दा उनका गलतियां हैं वहाँ बात करने नहीं देते तो क्या करेंगे? हम तो जरूर लड़ेंगे आगे भी। पूरे देश का गरिमा माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस को सरेंडर किया, किसानों का और ये जो ट्रेड डील साइन किया है बहुत नुकसान इंडिया को होने वाला है। ये ट्रेड डील बहुत बढ़िया डील है, इंडिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए। तो जो विषय उठाना चाहता था माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उसको बार बार ट्रेजरी बेंच के ओर से वरिष्ठ मंत्री द्वारा उनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके ऊपर हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रदर्शन किया था, लोकतांत्रिक तरीके से। कल दोपहर से हम ये मांग रख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका, स्पीकर और जितने भी प्रेशर माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर लगा रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इंक्लूडिंग लगा रहे हैं, ये ठीक सही बात नहीं है। ये लोकतंत्र का जो पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर जो प्रक्रिया है, नेम प्रक्रिया है, रूल्स है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, प्रेसिडेंस है, वो सारे चीज़ें तोड़कर जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम सस्पेंड होने के नाते भी हम पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर हमारा कॉलीग्स ये सारे विषय उठाए। लीडर ऑफ अपोजिशन का बात करने के लिए नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी का कल बोल रहे थे कल ऑथेंटिकेट करना चाइना जनरल नरवाने का स्टोरी को। राहुल गांधी जी ने आज ऑथेंटिकेट करके लेटर चिट्ठी दिया था। उसके बाद राहुल गांधी जी का चाइना और यूएस दोनों नाम लेने के वजह से उनका बात करने नहीं दिया। सरकार क्यों डर रही है चाइना और यूएस से? उसके बाद पूरी दूसरा समाजवादी साथियों का बात करने के लिए नाम बुलाया, समाजवादी साथियों ने मना कर दिया था। उसके बाद टीडीपी का एमपी का बुला लिया। ये संसद चलाना चाह रहे, नहीं चलाना चाह रहे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में पूरी ऑपोजिशन पार्टीज और सारे 240 एमपीज का बुलडोज करते हुए सिर्फ
अपने शाखा चलाना चाह रहे हैं क्या? अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का जो सस्पेंडेड है आप लोग? हमारा सारे लीडर्स मिलकर बात करेंगे। हम 8 लोगों का एक ही है। सुबह 11 साढ़े 11:15 बजे यहाँ मिलेगी आपका बाहर तरने देते हुए। कल से आप थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था करिएगा बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे छोड़ के सिर्फ सत्ता में कैसे रहना है, इसके लिए ही वो किसी का भी आवाज दबाने के लिए तैयार रहती है। आज कल से हमारे एलओपी को हमारे नेताजी राहुल जी गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, बार बार रोकने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है। ये लोग जब बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, तब कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। और हमने थोड़ा सा ही जनता के हित में, जनता के प्रश्न के लिए, जनता के संरक्षण के लिए अगर कुछ करना चाहते तो ये लोग हमको सस्पेंड करते हैं। अरे सस्पेंड क्या, आप जनता के प्रश्नों के लिए फांसी में भी चढ़े होंगे तब भी हमको चलेगा, हम चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जनता के जो प्रश्न है वो हम यहाँ पे रख के ही रहेंगे। हमको सस्पेंड किया तो क्या, कल से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और जनता के जो भी हमारे क्षेत्र के प्रश्न है, देश के हित में जो भी जनता के हक में लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे और लड़ेंगे।